بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بلا کا حسین۔ دوشیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھیں۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ ہلکی باریک بھویں، دراز پلکیں، سرمگی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اولوں جیسے شفاف دندان اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر موڑنے کا حکم دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارانہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بڑھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگیں اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معمول دارالخلافہ کے گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شعروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں گا جو شریف النسل ہے، خوبرو ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے۔ وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہیں، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند سا مکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر حاضرین نے تمہارے خوش قامت قد اور مضبوط کاٹ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہی تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے، تو انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کے تیز نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رختے سفر باندھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سلمہ کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج
हज्जाज अपनी बेवा माँ का बड़ा खिदमतगार और उसकी आंखों का तारा था। ये जब कभी उसकी निगाहों से ओझल हो जाता, उसकी आंखों में जहाँ अंधेरा हो जाता था और खाना पीना भूल जाती थी और इसके मुतालिक मोहूम खतरात में घर जाती, और जो ही ये उसके सामने आ जाता उसके लिए जहाँ रोशन हो जाता। उसे मदीना छोड़कर बसरा में जाकर बसना गवारा तो ना था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के सामने किसी को दम मारने की मजाल ना थी। उस बेचारे ने अपना दिल मजबूत करके अमीरुल मोमिनीन से पूछा भी कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे खूबसूरत होने और खवातीन के मेरी तरफ देखने में मेरे किसी तरह के कौलो फेल का दाखिल हो तो बताइए। लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई जवाब न दिया और फरमाया, ऐ नौजवान, ये मेरा इंतजामी हुक्म है जो पक्का है। अमीरुल मोमिनीन ने बसरा के गवर्नर को उसे बसरा में घर मुहैया करने का हुक्म दे दिया था। चुनाचा उस नौजवान ने अपनी प्यारी वालदा को अल्लाह और फिर अपने भाइयों के सुपुर्द किया और खुद ऊंट पर सवार होकर तवीलो अरीज सहरा और बुलंदो बाला पहाड़ों के दर्रों को अबूर करने लगा और कई दिनों की सोबत सफर बर्दाश्त करने के बाद बसरा पहुंच गया। उधर जब उस शादीशुदा खातून को अमीरुल मोमिनीन के इस इकदाम का इल्म हुआ तो वो अपने अंजाम से डर गई कि कहीं अब मेरी बारी ना आ जाए, तो उसने चुपके से ये अशार लिख कर किसी के हाथों आपकी तरफ भिजवा दिए। उस अमीरुल मोमिनीन से गुजारिश कर दीजिए जिसके नागिहानी गुस्से के तसव्वुर से बदन पर कपकपी तारी हो जाती है कि मेरा शराब नोशी या नसर बिन हज्जाज सलमा से कोई वास्ता नहीं। मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफी मांगती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे नसर बिन हज्जाज और शराब के बदले ताज़ा दूध और नीचे देखने वाली आँख में मयस्सर है, इसलिए मुझे शराब पीने और नसर बिन हज्जाज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इश्क को दोज़ख के खौफ ने लगाम दे रखी है और अब वो इस मकाम पर मुतमईन और पुरसुकून हो गया है। जिस उमंग और आरजू को पूरा करने का एहतमाम ना किया गया हो उसे जुर्म करार नहीं दिया जा सकता, और फिर लोग अपनी तमन्नाओं में सच्चे भी होते हैं और स्याहकार भी। लिहाजा आप गैर यकीनी बात को यकीनी बात का दर्जा ना दें, क्योंकि गुनाह की माफी मांगने वाले की राह ही सही है। जब अमीरुल मोमिनीन ने ये अशार मुलाहिजा किए तो रो दिए और फरमाया, सब तारीफों के लायक अल्लाह मालिकुल मुल्क की जात है जिसके खौफ ने इस खातून को नाजायज तरीके से अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने से रोक रखा है। नसर बिन हज्जाज सलमा के बसरा में रिहाइश पजीर होने के बाद उसकी वालदा उसकी जुदाई के गम में निढाल हो गई, क्योंकि उसके अतातोशार बेटे ने उसे जरूरियात जिंदगी से माला माल कर रखा था और अपने वालिद हज्जाज की वफात के बाद उसे किसी चीज की कमी न आने दी। अब उसे कमी थी तो सिर्फ अपने लख्ते जिगर के दीदार की कमी थी, जो किसी जुर्म के बगैर ही मदीना बदर कर गया। बुढ़ापे में मदीना मुनव्वरा को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और ना ही उसमें बेटे को बजोरे बाजू वापस लाने की हिम्मत थी। अलबत्ता एक दिन उसने जुर्रत करके अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद जाते हुए रास्ते में जा लिया और कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं रोजे कयामत अल्लाह के सामने दो जानू होकर आपके साथ झगड़ूंगा। आप तो अपने आसिम और अब्दुल्लाह के दरमियान सोते हैं, जबकि मेरे और मेरे नूरे नजर के दरमियान वसीओ अरीज सहरा और संगलाह कोहिस्तान मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ऐ नसर बिन हज्जाज की माँ, नौजवान पर्दा नशी खवातीन अपने पर्दों में आसिम और अब्दुल्ला के गीत नहीं गाती, जबकि उन्होंने तेरे साहबजादे के हुस्न जमाल के गीत अपने पर्दों में भी गाने शुरू कर दिए हैं। ये सुनकर वो बूढ़ी खातून सबर के घूंट पीती हुई वापस मुड़ गई और अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। इस अरसे में नसर बिन हज्जाज सलमा को अपनी बूढ़ी वालदा और मदीना मुनव्वरा के साथियों की याद सताने लगी। चुनाचा उसने अमीरुल मोमिनीन से मदीना मुनव्वरा में हाजिरी की इजाजत तलब करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी दरख्वास्त को अशार की सूरत में लिखना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से इन दिनों हजरत अतबा बिन गजवान अमीरुल मोमिनीन का कोई पैगाम लेकर बसरा तशरीफ ले आए और वो अपना काम मुकम्मल करके वापस मदीना रवाना होने लगे तो उनके मनादी ने आवाज लगाई कि जो कोई मदीना मुनव्वरा डाक भेजना चाहे वो जल्द अज जल्द अपनी डाक हमारे हवाले कर दे। नसर बिन हज्जाज ने इस मौके को गनीमत जानकर अपनी दरख्वास्त लिफाफे में बंद करके उनके हवाले कर दी। चंद दिनों बाद वो डाक मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। जब अमीरुल मोमिनीन ने अपनी डाक खोली तो उसमें सलामे मसनून के बाद बेकसूर जिला वतन नसर बिन हज्जाज के ये अशार नजर पड़े। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे बेतौकीर करके मदीना मुनव्वरा और दोस्तों में रहने से
محروम कर दिया है। ऐसा करना आपके लिए जायज न था। मेरे मुतालिक आपका तसव्वुर महज गुमान ही है। हकीकत ये है कि मैं बेकसूर हूँ और बाज गुमानों की तस्दीक करना भी गुनाह है। महज इस बिना पर कि सतवान नाक वाली एक शब अपनी आरजू का इजहार कर बैठी। हालांकि औरतों की बाज ख्वाहिशात की महज ताउन तसव्वुर की जाती हैं। आपने मेरे मुतालिक ऐसी बात मुतसव्विर कर ली जिसके बाद मैं किसी मजलिस में बात करने काबिल न रहा और मैं बगैर किसी तोहमत के जिला वतन कर दिया गया। हालांकि मेरा हर मीन में कयाम हुआ करता था और मुझे मेरा मर्तबा और मकाम उसकी आरजू की तकमील करने से रोकता है। और फिर मेरे बुजुर्ग किस कदर सच्चे इज्जतदार थे और उसे उसकी नमाज और रोजा और कौमी शराफत बुरी आरजू की तकमील से रोकती है। हमारी ये दोनों हालतें हमारे किसी तरह के मुमकिना और तकाब गुनाह में हाइल है। तो क्या आप मुझे लौटने की इजाजत देते हैं? अमीरुल मोमिनीन ने ये पढ़कर फरमाया कि मेरी अमारत में तो ऐसा नहीं हो सकता। अमीरुल मोमिनीन पर अल्लाह रहम फरमाए। आप अपने ख्याल और तसव्वुर में बिल्कुल सच्चे थे। ये नौजवान भी किसी न किसी दिन किसी नीलम परी की जुल्फ गिर का शिकार हो सकता है। इस अजमाल की तफसील ये है कि जब ये नौजवान मुस्तकिल तौर पर बसरा में रहने लगा तो उसने शहर के आमिर डिप्टी कमिश्नर मजाशे बिन मसूद सलमा के दफ्तर में आना जाना शुरू कर दिया। उसने उसे अपनी बरादरी का बरखुदार समझकर अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। चुनाचा ये कुछ अरसा तक उनके साथ उसके घर में जाता और उनके साथ वापस आ जाता। उसी दौरान उनकी बीवी जो अपने दौर की खूबसूरत औरत थी उस खूबसूरत नौजवान पर नजर रखने लगी और उस पर इंतहा दर्जे की नवाजिशें करने लगी, जिसकी वजह से उसका दिल भी पिघल गया और उसने उसे जबान से कुछ कहने की बजाय जमीन पर लिख दिया कि मुझे तुझसे इस कदर मोहब्बत है कि अगर वो तेरे ऊपर हो तो वो तुझ पर साया फगन हो, अगर नीचे हो तो तुझे हथेलियों पर उठा ले। ये तहरीर पढ़कर नौजवान खातून बेसाख्ता पुकार उठी कि मैं भी, अल्लाह की कसम। नौजवान खातून के अल्फाज उसके शौहर ने सुन लिए तो उसने उससे पूछा, तेरे कहने का क्या मतलब? उसने कहा कि नसर ने हमारी ऊँटनी को देखकर इशारतन कहा कि ये ऊँटनी किस कदर खूबसूरत है। मजाशी ने कहा कि तेरा ये कहना कि अल्लाह की कसम मैं भी इस बात का जवाब नहीं है, मुझे सच बता कि तूने ऐसा क्यों कहा। उसने कहा, सच पूछते हो तो वो ये है कि उसने कहा कि तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है। मजाशे ने कहा, ये बात गलत है, तेरा कलाम दरअसल किसी बात का जवाब है, तू मुझे जानबूझकर वो बात नहीं बता रही। उसी दौरान उसकी निगाह जमीन पर लिखी हुई इबारत पर पड़ी तो उसके दिल में ख्याल आया कि शायद मेरी बीवी के अल्फाज इस तहरीर का जवाब ही हों। उसने इस तहरीर पर एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन उल्टा करके रखवा दिया और नसर के जाने के बाद उसे अपने सेक्रेटरी से पढ़ाया तो पता चल गया कि उसकी बीवी का कलाम दरअसल उसी बात का जवाब है। जब नसर बिन हज्जाज को अपने इस मामले की अफशा होने का इल्म हुआ तो मारे शर्म के जमीन में गड़ गया और उसे अपनी इस हरकत पर इतना अफसोस हुआ कि उसे बिस्तर से उठने का याराना रहा और लागिर होकर चूजे हो गया। जब मजाशी बिन मसूद को उसकी हालत का पता चला तो उसने अपनी बीवी से कहा कि अब जा और मेरे बीमार बरखुदार को अपने सीने के सहारे बिठाकर अपने हाथ से खाना खिला, शायद कि इसी तरह उसकी सेहत बहाल हो जाए। उसकी बीवी ने ये मुतालबा पूरा करने से जवाब दे दिया, लेकिन मजाशे बिन मसूद बतौर शौहर होने के भी उस बात का इसरार किया तो वो मान गई और उसे खाना खिलाकर वापस आ गई। बादअज़ा मजाशे ने हजरत अबू मूसा अशरी गवर्नर कूफा से उस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा, बस इसी वजह से अमीरुल मोमिनीन ने उसे मदीना मुनव्वरा से बसरा भिजवाया था। चुनाचा उन्होंने नसर बिन हज्जाज को बसर भिजवा दिया जहां हजरत उस्मान बिन अब्दुल आस तकफी गवर्नर थे। नसर यहाँ से कूच करके फारिस के किसी कस्बे में आबाद हो गया। उसे अभी वहाँ आबाद हुए कोई ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि गांव के सरदार की बीवी उस पर मिटने लगी और उसे चोरी छुपे मिलने के पैगाम भेजने लगी। जब इस बात का इल्म गवर्नर फारिस को हुआ तो उन्होंने नसर बिन हज्जाज सलमा को अपने यहाँ बुलाया और अपनी तशवीश से आगाह किया और साथ ही उसे यहाँ से चले जाने का मशवरा दे दिया। उसने कहा कि अगर मैं अर्ज़े इस्लाम में किसी जगह
जगह भी नहीं रह सकता तो आप लोग मुझे कहीं भी सुकून से ठहरने नहीं देते तो मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह की कसम अगर आपने ऐसा किया तो मैं मुशरिकों की सरजमीन में रहने पर मजबूर हो जाऊंगा, वरना मेरा कोई कसूर बताया जाए। जब हजरत उस्मान ने ये सूरत हाल अमीरुल मोमिनीन को लिख कर भेजी तो उन्होंने नसर बिन हज्जाज को वहाँ से जिला वतन करने से मना कर दिया और हुक्म दिया कि उसे घर से मस्जिद और मस्जिद से घर आने जाने तक महदूद कर दिया जाए और उसे ज्यादा अरसा मस्जिद में गुजारने दिया जाए ताकि ना ये बाहर निकले और ना ही कोई फितना खड़ा हो। चुनाचा ये नौजवान खिलाफत फारूकी तक फारिस में ही जिला वतन रहा और उस दौर में उसकी कड़ी निगरानी होती रही। जब उमर मोमिनीन शहीद हुए और उसके सर और दाढ़ी के बाल सफेद होना शुरू हो गए तो ये वापस मदीना चला आया और आजादी से ईमान और तकवा की जिंदगी बसर करने लगा।